नेक्स्ट इज योर टर्म पोजीशन वेक्टर. बहुत इंटरेस्टिंग टर्म. क्या है बेसिकली? लेट्स से वी हैव अ पॉइंट and every point has its position in 3D space. It has its x coordinate, it has its y coordinate, it has its z coordinate. Let's say मैंने आपको बोल दिया this is x comma y comma z. This is the point in your space. Now this point can be treated as a vector. That means आपको करना कुछ नहीं है. For the vectors कितने पॉइंट होना जरूरी है? We are required 2 points. One is tail and the other one is head. So let's say if we have the x-axis, similarly y-axis and z-axis as well, that is out of the plane. Let's say we are drawing in this way. This is z-axis, this one is your y and this one is your x. So if I ask you that ये point है, इसको आप वेक्टर फॉर्म में लिखना चाह रहे हैं, अब एक पॉइंट से कैसे वेक्टर लिखेंगे? जरूरी है 2 पॉइंट होना चाहिए, राइट? So do one thing, whatever the point is, take this as head and take the tail at origin. उसका tail कहां पे ले लो? Origin पे ले लो, right? So if I ask you, this is point O, that is point P. So OP vector is going to be what? अगर OP vector की बात करें तो final minus initial. So that will be x minus 0 I cap plus of y minus 0 j cap plus of z minus 0 k cap. So you are going to have OP vector as what? xi cap plus yj cap plus of what? z k cap. तो बेसिकली सीधे भी कर सकते थे यार, पी पॉइंट को सीधे लिख लो, x कॉमा y कॉमा z में i j के ही तो लगाना है, तो यू कैन रिप्रेजेंट अ पॉइंट इन अ वेक्टर फॉर्म एंड दैट इज योर पोजीशन वेक्टर. यानी x कॉमा y कॉमा z सिंपली वेक्टर फॉर्म में x i cap plus y j cap plus z k cap. फॉर एग्जांपल एक पॉइंट है, लेट्स से वो पॉइंट ये q, राइट? पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स है -1 7 एंड 3. तो वेक्टर फॉर्म में क्या लिखेंगे? इसी को यूज करना है कॉन्सेप्ट. जैसे ही x y z है, i j के चिपकाना है और क्या. सो सिंपली विल राइट दिस एज -i cap 7 j cap एंड 3 k cap, राइट? तो लिख लेते भाई o q वेक्टर, या सीधे सीधे हमने q वेक्टर पॉइंट को पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में लिख दिया. सो विल हैव -i cap प्लस व्हाट 7 j cap प्लस 3 k cap. सेम वे यार, we have the point, we have to join it with origin. This is the head, origin is the tail, and simply we get the OQ vector, right? So we have a power of representing a point in a vector form, and that is your position vector. Fine. Now we'll quickly move that what is the definition? That position vector for a point is a vector for which tail is the origin and head is the given point itself, as I have explained to you, right? So position vector of a point defines the position of point with respect to the origin, right? तो जो डायग्राम था, that OP vector will be your R vector जो हमने देखा, and this is an example of 2D. You can take it as 3D as well, right? So एक टर्म और है जो ऐड हो जाएगी, that is ये 2D के लिए हो गया. For 3D it is going to be what? As we have seen, xi cap plus of y j cap plus of what? Z k cap. Fine. So that's the diagram it represents. Now we are going to see another important topic, that is your displacement vector. Now what is displacement vector? Basically, let's say we have the change in position vector. What do you mean by change in position vector? मतलब अगर एक पार्टिकल एक पॉइंट पे था और बाद में वो किसी दूसरे पॉइंट पे चले गया, so there is a change in a position vector. मतलब उस पार्टिकल की पोजीशन चेंज हुई तो ऑब्वियस बात है उसका पोजीशन वेक्टर भी क्या होगा? चेंज होगा, राइट? तो दैट इज योर, वहां पे बेसिकली हमें फाइंड क्या करना है? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फाइंड करना है. नाउ लेट अस अंडरस्टैंड दिस विद अ डायग्राम. सी, पहले पार्टिकल की पोजीशन, लेट अस कंसीडर दिस एज x1 i cap plus y1 j cap. वी आर टेकिंग इट एज 2D, राइट? एंड r2 वेक्टर व्हिच इज x2 i cap plus y2 j cap. सो जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा दैट विल बी फाइनल माइनस इनिशियल, राइट? सो दैट इज गोइंग टू बी x2 minus x1 i cap plus y2 minus y1 j cap. डायग्राम से देखेंगे ज्यादा बेटर है. See, let's say we have this as x1 y1 and this one as your x2 y2. तो ये हमारा r1 वेक्टर हो गया कनेक्टेड विद ओरिजिन. दिस p इज द पोजीशन वेक्टर. OP वेक्टर हमारा r1 वेक्टर हो गया और OQ हमारा क्या हो गया? r2 वेक्टर. नाउ वी सब्ट्रैक्ट फाइनल माइनस इनिशियल, सो दैट इज, ये हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, राइट? सो दिस इज योर विच वेक्टर?
PQ vector, and that comes out as how much? X2 minus X1 I cap plus Y2 minus Y1 J cap. I hope it is clear. So we can conclude that vector in a space starting from X1 Y1 and ending at X2 Y2 can be simply represented as this: X2 minus X1 I cap plus Y2 minus Y1 J cap, because displacement is the shortest distance between the initial and final position. तो वो स्ट्रेट लाइन होगा और यानी हम वो वेक्टर निकाल सकते हैं, राइट? सो दैट्स योर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर. नाउ वी हैव अनदर इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज योर लैमीज थ्योरम. नाउ व्हाट इज दिस लैमीज थ्योरम? दिमाग में पहला क्वेश्चन तो यह है, लैमीज थ्योरम क्या है, व्हाट इज दिस, राइट? सो विल क्विकली मूव टू दिस. वी हैव थ्री फोर्सेस. हाउ मेनी फोर्सेस? थ्री. कितने फोर्सेस होना जरूरी है? तीन. एक P, Q और तीसरा R, एंड दे आर एक्टिंग ऑन वन सिंगल पॉइंट. ठीक है, तो यहाँ पे एक पॉइंट पे ये तीन फोर्सेस एप्लीकेबल हैं, एंड लेट्स से द बॉडी इज इन द इक्विलिब्रियम. बॉडी इज इन द इक्विलिब्रियम मतलब जितने भी वेक्टर्स का जो समेशन होगा दैट कम्स आउट एज 0. तो लेट्स सी विद द डायग्राम दैट वी हैव थ्री फोर्सेस applicable to this. Let's say this is your P vector, Q vector and R vector in this direction. ये एक पॉइंट पे एप्लीकेबल हैं और ये इक्विलिब्रियम में. इक्विलिब्रियम में मतलब आप जैसे रिजॉल्व करेंगे इनको. सो अगर मैं यहाँ पे इमेजिनरी एक्स एक्सिस और आपके सामने वाई एक्सिस बना लूँ, सो जो P का x कॉम्पोनेंट है वो Q के x कॉम्पोनेंट को कैंसिल करेगा, और P और Q का जो दोनों का y कॉम्पोनेंट है वो R को बैलेंस करेगा, राइट? तो यानी इक्विलिब्रियम मतलब नेट फोर्स पार्टिकल पे 0 है, ऑल्दो वी हैव थ्री फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल, राइट? तो इस केस में व्हाट वी आर सपोज टू डू, बेसिकली वी कैन अप्लाई द कंडीशन दैट इज गिवन बाय द लैमीज थ्योरम. सो व्हाट इज दिस कंडीशन? सो टू अंडरस्टैंड दिस बेटर, मैं ये एक्सेस रिमूव कर लेता हूँ, राइट? तो कंडीशन बड़ी सिंपल है, बहुत ही आसान कंडीशन है. एंड व्हाट इज दैट कि P के अपॉन में, जैसे मान लो इफ यू आर टेकिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ P वेक्टर, सो अपॉन में उसके अपोजिट जो एंगल आ रहा है उसका साइन कंपोनेंट, दैट इज साइन अल्फा. वैसे ही Q के अपोजिट में क्या आ रहा है? Q के अपोजिट में आ रहा है साइन बीटा, एंड R के अपॉन में क्या आ रहा है? साइन गामा. सो दैट इज योर लैमीज थ्योरम. ये इक्वल रहेंगे, दे आर गोइंग टू बी इक्वल. सो P अपॉन साइन अल्फा इज इक्वल्स टू Q अपॉन साइन बीटा इज इक्वल्स टू R अपॉन साइन गामा, राइट? सिंपल है. P के अपोजिट साइन अल्फा, Q के अपोजिट साइन बीटा, R के अपोजिट साइन गामा, अपॉन में रख दो, इक्वल लगा दो, दैट इज योर लैमीज थ्योरम. इज दैट क्लियर? नाउ वी हैव व्हाट? वी हैव another important, that is we are going to see few practice problems based on what we have studied till now. So basically we are given that the magnitude of two forces acting at a point, and that is 18, and the magnitude of the resultant is given as 12. मतलब बेसिकली यहाँ पे दो फोर्सेस हैं और उन दोनों के मैग्नीट्यूड्स का जो सम है दैट इज गिवन एज 18, राइट? और उनके जो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड है वो 12 दे रखा है, राइट? और ऐसा भी बोला है कि द रिजल्टेंट इज एट 90 डिग्री विद द स्मॉलर फोर्स. तो जो रिजल्टेंट है वो 90 डिग्री बना रहा है विद द स्मॉलर फोर्स. सो लेट्स अंडरस्टैंड विद दिस डायग्राम. लेट्स से एक वेक्टर है इन दिस डायरेक्शन, राइट? एंड दूसरा वेक्टर है दैट इज इन दिस डायरेक्शन. Let's say this is P vector and this one is, let's say, Q vector. Using a triangle law, हेड से दूसरे वेक्टर का क्या कोइंसाइड करना चाहिए? टेल. और ये रिजल्टेंट है इन दोनों का, टेल टू टेल और हेड टू हेड. दिस इज रिजल्टेंट वेक्टर R. तो यूजिंग ट्राइंगल लॉ व्हाट वी नो दैट P वेक्टर प्लस Q वेक्टर इज इक्वल्स टू व्हाट? R वेक्टर. और यहाँ पे जो रिजल्टेंट है वो P से कितना एंगल बना रहा है? 90 डिग्री. ऐसा बोला है, क्वेश्चन में बोला है दैट द रिजल्टेंट इज एट 90 डिग्री विद द फोर्स ऑफ स्मॉलर. तो यहाँ पे हम अज्यूम कर रहे हैं कि P इज स्मॉलर. लेट्स से दिस इज X. P का मैग्नीट्यूड हम मान लेते हैं X है, और दोनों के मैग्नीट्यूड का जो सम है दैट इज द सम ऑफ द मैग्नीट्यूड्स ऑफ टू फोर्सेस. तो इफ दिस इज X तो Q का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा? 18 माइनस X. Why 18 माइनस X? बिकॉज दोनों का सम 18 है, तो अगर एक X है तो दूसरा कितना हो जाएगा? 18 माइनस X, राइट? और हमें बेसिकली यहाँ पे फाइंड क्या करना है? We are given that the resultant R, तो इस R का मैग्नीट्यूड हमें 12 दे रखा हुआ है, it is given, and this is a right triangle. तो हमें पाइथागोरस थ्योरम पता है. What is that? That will be Q square is equals to how much? P square plus
r square. Now what is q? That will be your 18 minus x का whole square. What is p? x square. And what is r? 12 का square. 12 का square is how much? 144. So once you solve this, you will have what? 18 minus x whole square minus x square, and that will be equals to what? 144. इसको solve करें, simple करें. So a minus b whole square is what? A square. So 18 square plus b square minus 2ab. So you'll have minus of 36x and minus of x square. किसके बराबर है? 144 के. So x square क्या हो जाएगा? Cancel. So you'll have 18 square which is 324 nearly. And minus of क्या कर देंगे? 144. And that is equals to what? 36x. Right? So उसको solve करें भाई. 324 minus 144 is going to be how much? See, you will have, once you solve this is 0, 8 and 1. And you have to divide it by what? 36 to get the value of x. And you solve this, you'll have 18 10 times, 2 times. So value of x comes out as how much? The value of x comes out as 5 Newton. Now that's the force, smaller one. तो अगर ये 5 है तो you put, आपको दे रखा है दोनों का सम 18 है. So if x is 5, so वो कितना हो जाएगा? 18 minus 5, so that comes out as how much? 13. So which is the correct option? Correct option is option number 3, right? Magnitude कितना आ गया? एक का 5 आ गया, so दूसरा 18 minus 5, and that will be equals to 13. I hope you understood. Thank you very much. So that's the end of this slide. So we'll quickly move to the another question which is given us. We are given force, we are given R. Now simply to calculate the torque, what you are supposed to do, you are supposed to find R cross F. So I hope you can do this by your own. You have the R vector, you have the F vector. Simply you have to do the cross product of R vector and F vector. That is like we have done A cross B. So आप इसको solve कर लेंगे. R vector cross F vector. You can use either clock rule or you can either use determinants. Fine. So I'm not explaining this further. Simply बस formula. अब ये formula कहाँ पढ़ेंगे हम लोग? We are going to study in physics. In later on जब rotational पढ़ेंगे. So we'll see the formula for torque, that is R vector cross F vector. There we can get this formula. But यहाँ पे basically क्योंकि हमें torque find करना है, हमें F दे रखा है, R दे रखा है. So simply R cross F करके हमें torque की क्या मिल जाएगी? Value. So I hope you understood well. Thank you.